اس کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا. پھر اس منڈے نے وہی گندی بات بول دی, پھر اس نے وہی عزت لوٹنے والی بات بول دی, بہت گندی بات بولی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بولا؟ ارے سو میرے 3 بچے تو الگ, اگر اللہ مجھے 30 دیتا اور وہ سب کے ساتھ میری گود میں انتقال کر جاتے, تب بھی اپنے دامن پہ داغ لگنے نہیں دیتی. اگر اجازت ہو تو بتاؤں, جیسے تمہارا گاؤں تھا نا, تمہارا گاؤں ہے, ایسے ہی ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں نا ایسا لڑکا تھا یار, اتنا پیارا, اتنا, تم کیا ہو بیٹا, اتنا پیارا. سارے لوگ اس کے ہاتھ چومتے تھے اور سارے لوگ اس سے سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے. کہتے تھے صاحب ہمارے یہاں دکان میں چل کے دعا کرو, جو دعا کرتے وہ قبول ہو جائے. نوجوان اتنا پیارا, اتنا, اور اس کی کرامت کیا تھی, لوگ ایک اتنے بڑے تسلے میں آگ لے کے اس کے دامن میں بھر دیتے تھے, تو اس کا دامن ہی نہیں جلتا تھا. گھنٹوں گھنٹوں آگ رکھے تھے, دامن نہیں جلتا تھا اس کا. اس کے ہاتھوں میں ایسے کر کے نا, چولہے میں سے ایسے ہاتھ ایسے آگ لیے, جیسے تم لوگ شیرینی لیے بیٹھے رہتے ہو, وہ آگ لیے بیٹھے رہتا تھا, ہاتھ ہی نہیں جلتے تھے. آگ پہ چلتا تھا, پاؤں نہیں جلتے تھے. پورے گاؤں میں مشہور تھا. لیکن ایک دن اس کا پیارا ایک پرانا دوست مل گیا. کہنے لگا بھائی ذرا بتا, تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے, کون سا ایسا کام کیا ہے, تیرے ہاتھ نہیں جلتے, پاؤں نہیں جلتے, کپڑے نہیں جلتے, تیری دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے ایک لڑکے نے, ایک لڑکی نے میری تقدیر پلٹ دی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا لڑکی نے, کہا جی میری بہنوں سن لو, لڑکی کیسی ہوتی. وہ کہنے لگا سنو, ہاتھ پکڑ کے ایسے لے گیا ایک طرف. کہا پورے گاؤں میں, پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈا میں تھا, سب سے بڑا شرابی, جواری, کبابی, نشیڑیا میں تھا. میں اپنے پاس 40-50 غنڈے رکھتا تھا, انہیں شرابیں پلاتا تھا, تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا, اور ان سے جو کام چاہتا تھا وہ لے لیا کرتا تھا. وہ کہنے لگا سنو, اگر کسی غریب کو میں چاہتا تھا تو اس کی لڑکی کھچوا کر کے اس کی بے عزتی کر دیا کرتا تھا, جس کی چاہتا عزت لوٹ لیا کرتا تھا, جس کے چاہتا زمین ہڑپ لیا کرتا تھا, جس کو چاہتا میں مروا دیا کرتا تھا. پوری بستی میں سب سے زیادہ ڈاؤن تھا, پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈا تھا, پوری بستی میں سب سے بڑا ظلم اور ظالم تھا, ظلم کرنے والا ظالم تھا. اللہ اللہ وہ کہنے لگا سنو, سارے لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے, میں نے 50 نہیں 100 لڑکیوں کی عزت لوٹ لی, نہ جانے کتنوں کو گلا گھونٹ کے مار دیا, زمین کے اندر دبا دیا. 50 60 یا 40 50 غنڈے رکھتا تھا, انہی غنڈوں کے ذریعے گاؤں پہ راج کرتا تھا. جس کی بہن بیٹی مجھے اچھی لگتی تھی میں گھر سے کھچوا لیا کرتا تھا. مگر ایک دن وہ غنڈا کہنے لگا, ایک دن وہ لڑکا کہنے لگا, مجھ سے سارے لوگ ڈرا کرتے تھے, مگر میں نہا دھو کر کے, ایک دن نہا کر کے جب میں صبح صبح گھر سے باہر نکلا تو میں گھر سے باہر جا رہا تھا, میں نے جا کر کے دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے. لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے کپڑے پہنی ہوئی ہے, یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. اس کے کپڑوں سے جو چادر اوڑھے پڑی تھی, اس چادر سے اس کا جسم نہیں دکھائی دے رہا تھا, بلکہ اس چادر پر اس کے پیمت دکھائی دے رہے تھے. او میری بہنوں سن لیو, او میری بچیوں سن لو, جو شادیوں میں تم آج اپنا جسم دکھا رہی ہو, جو ایسے کپڑے پہنتی ہو جس سے تمہارا جسم دکھتا ہے, ایسے کپڑوں میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم بھی برور کی رہنے والی بچیاں ہیں, ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں. ہم بمبئی کی فلم جو بنانے والی لڑکیاں ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے, ہم مدینے کی فاطمہ کو فالو کرتے ہیں. ارے ہم وہ لڑکیاں ہیں, اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی ادا ہوگی جیسے فاطمہ کی ادا, اگر ہم پیئیں گے تو ہماری ادا فاطمہ کی ادا
खुदा से मेल खाएगी। और लड़कियों पता देना, मगर ये लड़की जब सुबह सुबह आ रही थी उसका चेहरा ढका हुआ था। अल्लाह अल्लाह, ये गुंडा इधर से जा रहा था, इस गुंडे ने जब देखा तो उस लड़की को आगे से घेर लिया। लड़की को गुस्सा आ गया, उस लड़के ने जब आगे से घेरा, लड़की खूबसूरत थी और इसकी नीयत खराब हो जाती है। लड़का आगे से ऐसे हाथ करके घेर लेता है, लड़की कांप जाती है, बेचारी डर जाती है, बेचारी लरस रही है, बेचारी तड़प रही है और दिल ही दिल में कह रही या अल्लाह या अल्लाह, ये वही गुंडा है जिसने 50 की इज्जत लूट ली है, जिसने चौराहे पर ना जाने कितनों के कपड़े उतार लिए हैं। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। वो लड़की आंखों में आंसू भर लाई और दिल ही दिल में रो करके कह रही है, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। अल्लाह जब इतना कहा, अब वो लड़का कहता है, ऐ लड़की बोल कहां से आ रही है, ऐ लड़की बता कहां जा रही है, ऐ लड़की तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा खानदान कौन है, तेरा घर कहां पर है। वो लड़की रो करके हाथ जोड़ के कह रही है, भाई मुझे माफ कर दे भाई, भाई मैं तुम्हारी बस्ती में रहती हूँ, भाई मुझे माफ कर दो। न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरा चचा ताऊ है, न मेरा खालू न मामू है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ। हाँ मेरा घर तेरी बस्ती में वहां पर है। ओ मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं अकेली हूँ लेकिन मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। उन 3 बच्चों को मैं पालती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैं दूसरी औरतों की मजदूरी करने जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ मैं कपड़े धोने जाती हूँ। जब मजदूरी करके मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। वो लड़की कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मगर ये इतना बड़ा पाला गुंडा था, इसके जहन में शैतान, इसके सर पे शैतान सवार हो जाता है, इसकी रगों में खून के साथ शैतान दौड़ने लगा। कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, मैं तुझे रूपी और पैसे दे दूंगा। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे। उसने गंदा जुमला बोला था, उसने बहुत बुरा जुमला बोला था, उसने इज्जत लूटने वाली बात कही थी। लड़की कांप जाती है और कहती है, अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। अरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, ओ मेरी बहनों जब मोबाइल पे बात करती हो वो सुन लेना, ओ मेरे बच्चों तुम जो मोबाइल पे बात करते हो, चैटिंग वगैरह करते हो, सुन लेना, तुमसे हाथ जोड़ करके ये तुम्हारा भाई कह के जाता है, पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम देता है, ओ मेरी बहन तू अपनी माँ को धोखा मत देना, तू अपने बाप को धोखा मत देना, तू अपने भाई को धोखा मत देना। अरे तुम मर जाना मगर अपनी इज्जत का सौदा मत करना, दुनिया वालों को दिखा देना हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। वो लड़की कहने लगी, अरे अल्लाह ताला अगर कोई एक मर्तबा लड़की या लड़का आपस में हाथ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अस्तहे और सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है, मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसे जिंदा निकल लूं। आसमान कहता है, मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। ये दोनों कहते हैं, क्या भाई मुझे माफ कर दे, मगर उसके सर पे शैतान था। उसने फिर वही बुरा जुमला बोला, उसने फिर वही गंदी बात बोली और कहा मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे, मैं इशारा करता चल रहा हूं बस समझ लेना। बहुत गंदी बात कही थी, बहुत बुरी बात कही थी, उसकी इज्जत लूटने वाली बात कही थी। लड़की कांप जाती है, कहा अरे तू कैसी बातें कर रहा है। कहा लड़की देख मौका है, जितने रुपये चाहिए ले ले, जितने पैसे चाहिए ले ले। और इस्लाम की शहजादियों
آج جو تو یہاں کا جسم دکھا رہی ہے میری بہن، آج جو تو دوپٹہ سنبھل کے اوڑھ نہیں اوڑھ رہی ہے میری بہن، آج تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مان رہی ہے میری بہن، سن لے یہ اسلام کی شہزادی جلال میں آ کر کے کہتی ہے سب، ارے تو روپیوں کی دھمکی دیتا ہے، تو پیسوں کی دھمکی دیتا ہے، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، ارے تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکا کہنے لگا تو مجھے جانتی نہیں ہے، میں نے کتنوں کی عزت لوٹ لی ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، میں جسے چاہتا ہوں کھچوا لیتا ہوں۔ لڑکی رو کر کے کہنے لگی ہاں مجھے معلوم ہے تو کتنا ظالم ہے، لے چھری پکڑ، تو میری بوٹی بوٹی کر سکتا ہے، مار دے مجھے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر جب تک زندہ ہوں میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، اپنی عزت پہ ہاتھ ڈلنے نہیں دے سکتی، لے مار دے گا تجھے مارنا ہے، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے ٹکڑے کر دے، میں نے بھی اپنی غریب ماں کا دودھ پیا ہے، میری ماں نہیں ہے۔ او اسلام کی شہزادی ہو، آج تم کیسے شادیوں میں کپڑے پہنتی ہو میری بہن، ایسی ایسی لڑکیوں کی تاریخ ذرا سناؤ۔ ارے یہ کہنے لگی میں نے غریب ماں کا دودھ پیا ہے، لے میری چٹیا کاٹ، لے میری ناک کاٹ، لے میری گردن کاٹ، لے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر میں بھی اپنے باپ کی ہوں، تجھے ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی۔ اور لڑکی رو کر کے چھری پھینک دی اور پھینک کر کے چلی گئی، لڑکی چلی گئی، لڑکا ہکا بکا کھڑا رہ گیا، کہا کھچوا لینا مجھے، مروا دینا مجھے، ٹکڑے کرا دینا مجھے، ابھی تو خدا نہیں ہوا ہے، ابھی تو اللہ نہیں ہوا ہے، میری حفاظت میرا اللہ کرے گا، میری حفاظت میرا اللہ کرے گا، اللہ اللہ۔ وہ لڑکی چلی جاتی ہے، گھر چلی جاتی، اس نے اپنا جسم تو جسم، اس نے اپنا پلو تک نہیں دکھایا۔ او میری بہنوں سنو، اسلام کی شہزادی ایسی ایسی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اب ذرا سنو، اس گاؤں میں سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، بھوکمری پڑ جاتی ہے، اس گاؤں میں اناج ختم ہو گیا، میڈیم لوگوں کے یہاں پہ چولہا نہیں چلا، تو اس غریب کا کیا ہوگا جس کے گھر میں ٹوٹی پوٹی چھپریاں پڑی ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے کھیل رہے ہیں، ایک دن اس گھر میں چولہا نہیں چلا۔ او بچہ سنو، ارے یہ ماں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، 3 بچے کھیل رہے ہیں، ایک دن ہو گیا اس گھر میں چولہا نہیں چلا، اب وہ بچے بھوکے رہے، بھوک کے مارے تڑپنے لگے، 3 بچے اپنے ماں کے پاؤں میں آ جاتے ہیں، کہنے لگے ماں کیا ہمیں آج کھانا نہیں ملے گا، ماں ہمیں کھانا نہیں کھلاؤ گی، ماں بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو ماں۔ ارے اس غریب ماں کے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کو، 3 بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے میرے لال اللہ ضرور انتظام کرے گا۔ ارے ایک دن گزر گیا، کھانا نہیں ملا، اب دوسرا دن ہو جاتا ہے، اس غریب کے یہاں پہ چولہا نہیں چلا، دونوں بچے کملانے لگے، دونوں بچے لڑکھڑانے لگے، دونوں بچوں کو 3 بچوں کو چکر آنے لگا، اب کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کچھ تو کھلا دو ماں۔ ارے یہ ماں نے بچوں کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال آج تمہاری ماں بہت بے بس ہے، 3 بچوں کو بٹھا کر کے یہ ماں محلے میں نکل جاتی ہے اور ماں اپنا آنچل پھیلا کر کے بھیک مانگ رہی ہے، اس اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بچوں کی جان بچا لو۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی رو رو کر کے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، جب تمہاری ماں تمہارے لیے بھیک مانگتی تب تمہیں پتہ چلتا، ارے وہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے۔ 3 بچے رو رہے، ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں کا انتظار کر رہے، ہماری ماں آ رہی ہوگی، مگر ماں بھیک مانگنے کے بعد واپس آ گئی، کچھ نہیں ملا۔ 3 بچے کہہ رہے ماں ہمیں نہیں کھلاؤ گی کیا ماں؟ اماں کونے میں کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے، اے اللہ
तीसरा दिन आ जाता है, तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ माँ अब तो कुछ पकने के लिए रख दो माँ, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है माँ, माँ बहुत भूख लग रही है माँ, हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ। अरे तीनों बच्चे तड़प रहे हैं। ये माँ आड़ में जाकर के हांडी में, इस माँ ने 3 पत्थर हांडी में डाल दिए और डालने के बाद उन बच्चों से छुपा के पानी भर के चूल्हे पर रख दिया। अरे तुम्हें क्या पता, इस माँ से जरा पूछो, इस माँ ने तुम्हारी लेट्रीन हाथों में लेके धोई है, तुम्हारा पेशाब धोया, तुमने पेशाब किया, इस माँ ने अपनी चादर या दुपट्टा गीले पे रख के खुद गीले पे सोई, मगर तुम्हें सीने पे लिटाला ये माँ है। आज तुम इस माँ को ठुकराते हो, आज इस बाप को ठुकराते हो, इस बाप का लाल खून काला पड़ गया। एक दिन ये तुम्हारा बाप हीरो था, हीरो, तुम क्या हीरो, तुम तो बनावटी हीरो, ये असली हीरो थे। इस माँ से पूछो। अल्लाह, वो माँ ने आड़ में जाकर के 3 पत्थर हांडी में डाले और डालने के बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया और बच्चों से कहा बच्चा अब खाना पकने लगा। तीनों बच्चे चूल्हे के आसपास बैठे हैं, उल्टी सीधी सांसें ले रहे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया और कह रहे माँ जल्दी पक जाएगा ना माँ। माँ कोने में खड़ी होकर कह रही मौला आज ये माँ अपने बच्चों के सामने झूठी ना बन जाए मौला। मौला ये माँ ने पत्थर डाल दिए मौला, इस माँ की इज्जत रख लेना मौला, इस माँ की लाज रख लेना मौला। अल्लाह, ये माँ कोने में खड़ी होकर रो रही है और चूल्हे के आसपास तीनों बच्चे कह रहे हैं भैया अब तो बन गया होगा खाना, भैया बताओ ना खाना पक गया होगा। इस माँ का दिल चिर गया। ये माँ, इसने वही चादर ओढ़ी, बेमद वाली चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद ये माँ निकल के चली गई बाहर को। जैसे ही बाहर जाकर के देखा, बच्चे समझे मेरी माँ सब्जी लेने जा रही है हमारी माँ। अल्लाह अल्लाह, चादर ओढ़ के जब बाहर गई देखा उसी मालदार गुंडे के घर पे लाइन लगी पड़ी है। इस लड़की ने पूछा ये लाइन कैसी है? लोगों ने बताया अगर जिसके पास चांदी सोना है वो सोना चांदी रखने के बाद अनाज मिल रहा है अनाज ले लेता है, जिसके पास जमीन हो वो जमीन रख के अनाज मिल रहा है ले लेता है। अब लड़की के पास जमीन का टुकड़ा नहीं, बेचारी के पास सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं, उसके बाप भी नहीं थे, उसकी माँ भी नहीं, उसका भाई भी नहीं, उसका शौहर छोटे छोटे बच्चे छोड़ के इंतकाल कर गया। वो लड़की इतनी साबिरा शाकिरा, मगर उसकी आंखों में आंसू आए और उसने अपनी चादर ओढ़ी, इस अंदाज में चादर ओढ़ी, उसने अपना पूरा जिस्म छुपा लिया। मेरी बच्चियों, शादियों में तुम्हारा जिस्म छुपता नहीं है, तुम्हारे बाल दिखते हैं। ओ मेरी बहन, आज तुम्हारा ये भाई तुमसे बड़े अदब के दायरे में कह के जाएगा। शादी में तुम्हारा जिस्म ना दिखे, किसी फंक्शन प्रोग्राम में तुम्हारा जिस्म ना दिखे। अभी भी मेरे सामने कई बच्चियां बुर्का ओढ़े पड़ी हैं, कितनी प्यारी ये बुर्का लिबास ही अलग है। कुछ बच्चियां बगैर दुपट्टे के, बगैर बुर्के के हैं, मगर फिर भी अपनी चादर और दुपट्टे से जिस्म छुपाए पड़ी है। कितना प्यारा अंदाज है, यही अंदाज होना चाहिए। अब जरा सुनो, वो लड़की ने अपनी चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद लाइन में लग गई, मर्दों की लाइन में। अरे ये माँ क्या नहीं करे, तीनों मर्दों की लाइन में लग गई। तीनों बच्चे उधर इंतजार कर रहे, हमारी माँ आएगी तो हमें खाना खिलाएगी। अरे क्या पता था ये माँ पत्थर डाल के गई है पानी में। अरे माँ ने पत्थर डाले, मगर उस लड़की के खड़े होने का अंदाज देखो, आगे वाले से
से जिस्म टकराए, न पीछे वाले से जिस्म टकराए। कुछ बच्चियों की आदत अच्छी नहीं होती, मेरी इन बच्चियों को, हालांकि वो गलत नहीं है मगर इसको ये अच्छा समझती हैं। 3-4 लड़कियां आपस में मिली, इन्होंने मोबाइल लिया, इन्होंने फैशनीले कपड़े पहने, सबसे ऊंचे पे जाकर खड़े होकर सेल्फी लेती हैं और वहां पे हंसी मजाक ठिट्ठे करती हैं। मेरी बच्ची, तेरी माँ की बड़ी इज्जत है, तेरे बाप की बड़ी इज्जत है। अरे मुसलमान की बेटे की इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत, नबी की बेटी फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? उसका सोना नहीं, उसकी चांदी नहीं, उसके रुपये पैसे नहीं, उसके जेवरात नहीं, उसका कुछ और नहीं। ये फातिमा कहती है लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत है, उसकी इज्जत है। लड़की मर सकती है मगर शर्म हया गैरत नहीं छोड़ सकती, अपनी इज्जत का हवाले नहीं कर सकती है, ये मर सकती है। इस्लाम की शहजादी, मेरी बच्चियों, यहाँ की बच्चियों, तकरीर सुनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में पैगाम देता हूँ, मेरी बहन, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ, सैयदजादा हूँ, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, आज के बाद कभी तुम अपने बाल मत दिखाना, आज के बाद कभी फैशनीले कपड़े मत पहनना। दुनिया वालों को बता देना, जिन कपड़ों से हमारी नमाज नहीं हो सकती, जिन कपड़ों से मुसलमानों की इज्जत खत्म होती है, जिन कपड़ों से हमारे माँ बाप की बेइज्जती होती है, जिन कपड़ों से नबी ने मना फरमाया है, जो कपड़े इस्लाम के खिलाफ है, हम उन कपड़ों को अपने जिस्म पे नहीं डालते, हम चूल्हे में रखते हैं, चूल्हे में हम उन्हें जला दिया करते हैं, आग लगाते हैं। ऐसी मेरी बच्ची है, ऐसी मेरी बहनें हैं। अब जरा सुनाओ, वो इस्लाम की शहजादी मर्दों की लाइन में खड़ी हुई रो रही है और कह रही है अल्लाह मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, या अल्लाह, या अल्लाह। अब वो खड़ी और रो रही है, कह रही है मौला मेरे पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, क्या रखूंगी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, क्या रखूंगी, मगर दिल में ख्याल आया नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, पंजतन पाक का वास्ता दूंगी, गौसे पाक का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, वो लड़की रो रही है, आंखों में आंसू है, मगर फिर भी कह रही है अल्लाह मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इतने में वो गुंडा बाहर निकला, उसने उस लड़की को पहचान लिया, यही वो लड़की है जो मुझे जवाब दे के गई थी। उसने अपने 4 गुंडों को बुलाया और बुला करके कहा देखो वो सामने कौन खड़ी है, कहा वो लड़का का नहीं, लड़की नहीं, लड़का नहीं लड़की है, जाओ उसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अब वो 4 गुंडे आते हैं, उस लड़की को पकड़ के उस मालदार के कमरे में ले जाते हैं। उधर तीनों बच्चे माँ का इंतजार कर रहे थे, हमारी माँ हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाती होगी, हमारी माँ, और क्या पता था माँ की इज्जत पे बनाई है, क्या पता था माँ तड़प रही है, अरे क्या पता था इस माँ को कितनी तकलीफ है। और 13 साल की मेरी बच्ची, 14-15 साल की बच्ची, अगर तेरी माँ तुझे डांटे, मेरी बच्ची तू माँ को जवाब मत देना, माँ को बहुत तकलीफ होती है, तुम माँ को पलट के जवाब मत देना, जिस काम को माँ कहे उस काम को कर लेना। तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई, तेरी माँ ने बड़ी मुश्किलात से तुम्हें पैदा किया है, अगर तू पक्की सच्ची माँ की वफादार है तो आज के बाद मेरी तकरीर सुनने के बाद कोई भी बच्ची अपनी माँ को जवाब नहीं देगी, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को जवाब पलट के नहीं देगा। अब उस लड़की को पकड़ के उस गुंडे के कमरे में ले गए। तीनों बच्चे कह रहे हैं भैया माँ कब को आएंगी, अब तो खाना बन गया होगा। अरे क्या पता था माँ उधर पकड़ी गई, माँ को पकड़ के उसके कमरे में डाल दिया। सामने वो गुंडा बैठा है, कहा बोल बोल क्या चाहिए। तो ये लड़की अपना आंचल फैला के कह रही है भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, रुपया दिया, तुझे पैसे दिए, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया, मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की। अरे ये माँ औलाद की खातिर भीख मांगती है, अपने
पूछ ये पुराने इन्होंने कितने फावड़े चलाए, कितनी कस्सी चलाई, कितने डल्ला भैंसे गाड़ी चलाई, कितनी मजदूरी की, तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया। ये बाप न कभी जानवर से डरा, न कभी कीड़े से डरा, रात बिरात में तुम्हारे लिए कहां भागा फिरता रहा। इसने 10, 20, 50, 100 रुपए पे मजदूरी करके तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया। आज तुम्हारे घर में तुम बंबई चले गए, तुम कलकत्ता चले गए, तुम बैंगलोर चले गए, तुम दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई चले गए, तुम ये काम करके आए, तुमने घर में टाइल्स पत्थर लगा लिया, अब बाप बेवकूफ हो गए, बाप की चलने नहीं देते हो, अब बाप तुम्हारी नजर में कोई नहीं रहा। मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तू इस्लामी रिश्ते का मेरा भाई है। अपने बाप की तकलीफों को देखना, अपने बाप की परेशानियों को देखना, भुगने को पकड़ लो कोई खेलेगा नहीं, अपने बाप की परेशानियों को देखना। इस बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ गौर करो। उधर उस लड़की को पकड़ लिया गया, कह रही है भीख मांग रही माँ, कह रही है मेरे छोटे छोटे बच्चे पता नहीं जिंदा है या मर गए, ओ भाई मुझे अनाज दे दे, मुझे रुपया पैसा दे दे, मुझे ये दे दे ताकि अपने बच्चों की जान बचा लूं। मेरे खून कह के कतरा बिकेगा, तेरा कर्जा अदा कर दूंगी। मगर ये लड़का वही गुंडा था, उसके सर पे शैतान सवार हो गया। फिर इस मुंडे ने वही गंदी बात बोल दी, फिर इसने वही इज्जत लूटने वाली बात बोल दी, बहुत गंदी बात बोली। आप समझ गए होंगे क्या बोला। जब इसने कहा लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, तेरे बच्चे बचा लूंगा। मगर ये लड़की जलाल में खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहा अरे सुन, मेरे 3 बच्चे तो अलग, अगर अल्लाह मुझे 30 देता और वो सबके साथ मेरी गोद में इंतकाल कर जाते, तब भी अपने दामन पे दाग लगने नहीं देती, तब भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, तब भी अब तेरा हाथ अपने जिस्म पे डलने नहीं देती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मर सकती हूँ मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की शहजादी कहने लगी तुम मेरी पोटी पोटी करते, मुझे मार दे, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, शैतान तुझे मुबारक हो और हबीबुर रहमान मुझे मुबारक हो। जब इतना कहा मगर इस जालिम को जलाल आ जाता है, क्योंकि रुपयों में था, पैसों में था, दौलतमंद गुंडा था, 40-50 गुंडे पास में रहते थे, ये बड़ा मुतकब्बिर था। ये भी जलाल में खड़ा हुआ और खड़े होकर के उस लड़की को पकड़ के इतनी जोर से धक्का मारा, बेचारी चौखट में जाके लगती है, उसका सर फट जाता है, खून निकल के बेबे के गर्दन में जमने लगता है। इस लड़की ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, इधर तो बच्चों की तकलीफ में थी, बच्चों के वजह से परेशान थी। जब खून निकला, इसका सर चौखट में लगा, बेचारी चकरा गई, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया और लड़की गिरने लगी, चौखट पकड़ के नीचे को सरक के बैठी। अल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों की और मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अरे ये माँ कहा मेरे बच्चों की और मेरी इज्जत की हिफाजत करना। चौखट पे बैठ गई, इस जालिम ने इतनी लातें मारी, इतने पाँव मारे, लड़की अपने आप को बचा बचा करके कभी इसके सीने पे लात लगी, कभी इसके हाथों पे लगी,
پیٹ میں خون نکلنے لگا، مگر پھر بھی یہی کہہ رہی ہے اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ ادھر تینوں بچے کہہ رہے ماں تم کہاں ہو، جلدی آ جاؤ ماں، ہم سے بھوکا نہیں رہا جا رہا ہے ماں، ماں اب تو کھانا پک گیا ہوگا ماں۔ کیا پتا تھا ہماری ماں پتھر ڈال کے چلی گئی ہے، ادھر ماں کی جان پہ بن رہی ہے۔ جب ماں بے ہوش ہونے کے قریب اس ظالم نے بہت پاؤں مارے، بہت لاتیں ماری، اور اس نے اپنے 4 گنڈوں کو بلا کے ان کے حوالے کر دیا اور کہا سنا اس لڑکی کو دھکے مار مار کے اس کے دروازے پہ پھینک کے آؤ۔ بیچاری کو ادھر سے دھکا مارا تو ادھر گری، ادھر سے دھکا مارا ادھر گری، دروازے پہ جا کے لڑکی گری چت پڑی ہے، اس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، اب دوپٹے کا ہوش نہیں ہے، لڑکی گرتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، اسے کپڑے سنبھالنے کا ہوش نہیں۔ تینوں بچے چولہے کے پاس ماں کا انتظار کر رہے، کہ ہماری ماں کب کو آئے گی، اور کیا پتا تھا ماں پہ کیا بن رہی ہے۔ اللہ جب ایک بچے نے دروازے کو دیکھا، تینوں بچے سسکیاں لے رہے تھے کیونکہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب دروازے کو دیکھا تو ان کی ماں بے ہوش پڑی ہے، تینوں بچے دوڑے اور ماں کے پاس پہنچے، ماں تمہیں کیا ہو گیا ماں؟ ایک بچے نے گردن میں ہاتھ ڈالا تو خون میں سن گیا، کہا بھیا ماں کے خون نکل رہا ہے۔ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے کپڑے سنبھال رہے، ارے تمہیں کیا پتا او بچہ اس ماں نے تمہیں کیسے پالا، اس باپ نے تمہیں کیسے پالا۔ ہاتھ جوڑ کے کبھی ماں باپ کو گرم زبان مت بولنا۔ تینوں بچے ماں کے پاس آگئے، کہنے لگے ماں ہم سے باتیں کرو ماں، ارے ماں اٹھو نا ماں، تم تو سبزی لینے گئی، سالن لینے گئی ماں، ارے ماں ہوش میں ہو تو بولے۔ ماں بے ہوش پڑی ہے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک کوئی اتنا نہیں ہے جو ماں کے منہ میں آدھا چمچ پانی ڈال دے۔ لڑکی صبح سے دوپہر تک بے ہوش پڑی ہے، تینوں بچے کہے ماں اٹھو ماں، ماں کے کپڑے تینوں بچوں نے سوالے۔ چھوٹا والا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ ایسے لیٹ گیا جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے، اور لیٹنے کے بعد ماں مجھے سانسیں نہیں آ رہی، ماں اٹھو ماں اٹھو ہمیں کھانا دے دو ماں۔ اب جب دیکھا ماں نہیں اٹھ رہی ہے تو تینوں بچے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بولے بھیا ہماری ماں زندہ ہے مر گئی، بھیا ہماری ماں مر گئی۔ اب تینوں بچوں کو کیا پتا، تینوں بچے رو کر کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے یا اللہ، وہ یتیم بچے تھے، کہہ رہے یا اللہ ہمارا باپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہماری ماں کو بھی تو نے لے لیا، اے اللہ ہماری ماں کو زندہ کر دے۔ اللہ کو رحم آیا، بادل بارش کا بھیج دیا، جیسے بادل بارش کا آیا اللہ نے برسا دیا، اور جیسے ہی برسا اس لڑکی کے چہرے پہ بارش کی بوندیں گری، اللہ نے اسے ہوش دے دیا، ہوش میں آ گئی اور وہ ماں اٹھ کے بیٹھی، اس نے جلدی سے کپڑے سنبھالے، تینوں بچوں کو چھاتی سے لگا کر رونے لگی، کہہ رہی اللہ تو نے کتنا مجبور کر دیا اس ماں کو۔ تینوں بچوں کو لے آئی، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے بچہ اب چاروں ساتھ میں مریں گے، چاروں ساتھ میں۔ تینوں
तीनों बच्चे कहने लगे माँ किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने गले में, बच्चे कितने प्यार करते, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के मुंह को ऐसे छू लेते हैं तो माँ की थकावट उतर जाती है, माँ उन्हें चूम लेती है, उनका गुस्सा दूर हो जाता है, माँ उन्हें सीने से लगा ले उसकी थकावट दूर हो जाती है। ये माँ है और बच्चे हैं, तीनों बच्चे चिपटे पड़े हैं, कोई बालों पे है, कोई गले में है, कोई मुंह छू रहा, कह रहे माँ माँ हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। कहा मांगो बेटा। माँ खाना नहीं मांगेंगे, माँ पानी नहीं मांगेंगे, तो फिर क्या मांगना है? कहा माँ हमसे बर्दाश्त नहीं होता, माँ हमारा दिल फट गया, माँ हमसे सांसें नहीं ली जाती, माँ ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो, माँ हमें मुक्ति कर दो, माँ हमें आजाद कर दो, माँ माँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। अरे कौन माँ होगी जो अपने बच्चों का गला घोटेगी? कोई माँ नहीं घोट सकती बच्चों का गला। ये माँ पीछे को फिर बेहोश होने के करीब थी, मगर इसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद अब माँ ने फैसला कर लिया। माँ ने कहा एक ही रास्ता रह गया है, चलो मालदार के घर चलो और जा करके अपनी इज्जत उसके हवाले कर दो, जो अनाज मिले बच्चों की जान बचा लूंगी। माँ ने तीनों बच्चों को रखा और उस मालदार के घर चली, अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए चली। माँ किस तरह पे आ गई है, लेकिन सुनो अब ये माँ ने जब कदम आगे को बढ़ाया, तीनों बच्चे कहने लगे नहीं माँ कदम आगे मत बढ़ाओ, माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ तुम बहुत पाक हो, माँ तुम्हारी पाकी की दुनिया कसम खाए करेगी, माँ तुम हरगिज़ मत जाना, माँ। मैं इतना कहा छोटे बच्चे को झटका लगा, पीछे को गिर गया। माँ ने सोचा अगर देर कर दी तो ये दोनों भी गिर जाएंगे। माँ ने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिया, लेकिन जाकर के जब मालदार की कुंडी पकड़ी तो दिल में ख्याल आया, ए खातून दीन और इस्लाम करबला में फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके बचाया था। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे दे दिए मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हजरत उम्मे रुबाब शहर वालों ने बच्चे दे दिए मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हुसैन पाक ने अपने आप को शहीद कर दिया मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हजरत अब्बास के बाजू कट गए मगर दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। अली असगर 6 महीने के, इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, इतनी नस्लों के बाद 42-43 नस्लों के बाद हम हैं, तो हमारे हाथ मौलाना लोग उलमा चूम रहे हैं, तुम लोग हाथ चूम रहे हो, और वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं, सगे बेटे हैं, 6 महीने के बेटे हैं, जिनके बारे में कुरान पाक बोलता है, सैयदों के बारे में कुरान बोलता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत करने वालों के बारे में बोलता है। वो सैयद सादिया उनके खेमे में आग लगा दी थी, जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये खातून कहने लगी अरे तू है दीन और इस्लाम को डुबो रही है, अपने बच्चों को बचा रही है, कल फातिमा ने तुझसे पूछ लिया तो क्या जवाब देगी, सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी, हजरत सफिया और मैमूना ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी, मेरे नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगी? नहीं, तू अपना कदम गलत मत उठाना। इतना जब कहा इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी पकड़ के गिर जाती है, सामने से दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सुनने की बात है ये, जब दरवाजा खुला तो मालदार जो था, मालदार कहने लगा देख मैंने कहा था आएगी, तू आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए। मेरी बच्चियों बस 5 मिनट और बैठ जाओ, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। कहा कितनी दौलत चाहिए, कितने रुपये चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बोल। मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल। अभी नहीं, तू जब ठीक हो जाना आ जाना, 15 दिन के बाद आ जाना, 20 दिन के बाद आ जाना, जब तू अच्छी खा ले पी ले तब आ जाना। लेकिन ये लड़की कहने लगी तू कैसा बेवकूफ है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है फिर भी नहीं सुधरा। अरे तेरी माँ मुसलमान, तेरा बाप मुसलमान, मेरा कदम तो बह चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया, मेरी फातिमा ने मुझे
बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, सैयदों की दादी है फातिमा। कहा तू नहीं जानता, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। कहा तू नहीं जानता, नबी की बेटी है फातिमा। तू नहीं जानता, अली की बीवी है फातिमा। तू नहीं जानता, हसन और हुसैन की माँ है फातिमा। अरे तू नहीं जानता, वो फातिमा जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसके कैरेक्टर का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा यूं करते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये लड़की कहने लगी सान, तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह गफूर और रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह तव्वाब और हकीम है, तौबा तेरी कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह की वो जात है, अगर उसकी रहमत का एक कतरा बरस गया, तेरे गुनाह अगर समंदर के झागों की बराबर है तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, जरूर तू तौबा कर ले। इतना कह करके वो लड़की चली जाती है। जैसे ही घर पहुंची, तीनों बच्चों को उसने कदम गलत नहीं उठाया, कोई गलत हरकत नहीं हुई, घर पहुंच गई, तीनों बच्चों को गोद में लेके मौत का इंतजार कर रही है। इधर इस लड़के के दिल में झटका लगा, इस लड़के के दिल की दुनिया पलट गई और कहने लगी, ये कहने लगा यार ये लड़की है, कैसी पाकीज़ा लड़की है, इसके बच्चों की जान जा रही है, मगर इसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी, इसने शरीयत का खून नहीं किया, इसको मारा पीटा गया, मगर ये लड़खड़ाई नहीं, इसका ईमान कितना मजबूत है। लड़के ने इस लड़की को देख करके तौबा कर ली और सारे गुनाहों से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज से किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं देखूंगा, गलत नजर से नहीं देखूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसने तौबा कर ली। जैसे ही तौबा की और तौबा करने के बाद फौरन 3-4 आदमियों को बुलाया, कहा अनाज ले लो, रुपया पैसा ले लो। अनाज लेकर के सीधे उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। वो लड़की के जब अंदर पहुंचे, लड़की डर गई, कांप गई। लड़की ये समझी कि गलत इरादे से आया है, इसकी नीयत खराब है, इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, उठाने के बाद तीनों बच्चों की गर्दन के करीब कर दी, कहा अगर मुझे हाथ लगाया तीनों बच्चों को मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, उसके बाद जो चाहे कर लेना, जीते जी तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगी। वो लड़का कांप गया, कहने लगा ओ मेरी बहन, मैं तुझे देख करके तौबा कर लिया हूँ, मैं गलत इरादे से नहीं आया हूँ, तू मुझे माफ कर दे, तुझसे माफी मांगने आया हूँ। और मैंने तू नहीं कहा था ना अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह तव्वाब और हकीम है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है। ले मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, आज के बाद कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, मैंने पक्की सच्ची तौबा की है। मैं जल्दी से ये अनाज लाया हूँ, इसको पका ले, बना ले, अपने बच्चों को खिला ले। आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है, किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर नहीं डालूंगा, पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। उस लड़की ने जल्दी से अनाज लिया, लेने के बाद पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, जान बच जाती है, बच्चे फूल की तरह खिल जाते हैं। अब लड़की अपना दुपट्टा उठा करके दुआ करती है, मौला ये मेरा भाई है, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। मौला तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, तुझे तमाम सहाबा का वास्ता, नबी के बच्चों का वास्ता, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। तेरी रहमत पे भरोसा करके मैंने कह दिया था, इसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। और मौला इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। लड़की सजदे में जाकर के कहती है, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। इस लड़की की दुआ कबूल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये लड़का कौन है? इस लड़की की दुआ कबूल। लड़का कौन है ये लड़का वही है जो मैंने शुरू में बताया, हाथ आग में ले लेता है, हाथ नहीं जलते, दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलता, आग पे चलता,
پاؤں نہیں جلتے. کیا تھا کیا ہو گیا؟ ایک لڑکی نے زندگی پلٹ دی. میری بہنوں اچھی بنو. پلٹ دی. کیوں پلٹی اس کی؟ اس لیے اس نے پکی سچی توبہ کی. آج میرے ساتھ پکی سچی توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. اور سچے دل سے اٹھانا. رسمن جیسے مولویوں کے شاعروں اس میں اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا. بالکل پکے سچے دل سے اگر اٹھاتے ہو سب اٹھا لیں. علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے. آج کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے. انشاءاللہ پکے سچے مسلمان رہیں گے, آپس میں میل محبت اور نمازی بن کریں گے. بولو انشاءاللہ.